Nelson Mandela, the second chapter. This chapter is the extract from the autobiography written by Nelson Mandela. In this chapter, he had described how, after a long sacrifice and fighting, ultimately his country became independent. And when an independent country was set up, people around the world gathered on the soil of South Africa, how he felt and what was his idea, his notion about freedom. Everything has been described in this chapter. He writes that 10th May dawned very clear and bright. मतलब it brought 10th May, the day of 10th May brought lot of blessing for South Africa, because on that day a new democratic republic government was set up in South Africa. He writes that he was besieged by, he was surrounded by world leaders, world dignitaries who had come to join the inauguration ceremony of this democratic country, democratic government. He writes that the procession was organized in the sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. And further he described that it was oath taking ceremony. सब लोग ओथ ले रहा था, सब लोग वहाँ प्लेस लेने के लिए लीडर लोग आए थे, प्रेसिडेंट के लिए, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए. His daughter, उनकी daughter थी Janani, was also present there. For first time, for the second deputy president came Mr. De Klerk. After his sworn, for the first deputy president, Thombo Mbeki came, and now it came the turn of Nelson Mandela to swear as the president of, first black president of South Africa. और जब स्वीयर करने गए, शपथ लेने गए, बोले कि this country has become independent after a long sacrifice, and he pledged to hold the constitution. Mandela says that in this autobiography, after extraordinary human disaster, ultimately the country had become independent, and the world leader have come to recognize, to respect this newborn democracy, where people were going to get every type of rights. He says that he has gone through, his people had gone through extraordinary human disaster, so now he will be very cautious that nobody is going to feel the same type of human disaster that he has felt. Nobody will be tortured. Nobody will be troubled because of his race, because of his color, etc. And he said that now South Africa, long live democracy, long live republic, and long live South Africa. Then further he described that jet planes came, flew over the Union Building, and he said that it was not only the pinpoint procession, केवल यह पिन पॉइंट प्रोसेसन नहीं था, केवल एक दिखावट नहीं था कि मिलिट्री वहां के कितना पावरफुल है, कितना स्किल और अरेंज्ड है, but also it was showing the loyalty to this new born democracy. डेमोक्रेसी के प्रति एक लॉयल्टी भी दिखा रहा था, एक भक्ति भी दिखा रहा था.
or later he says that after that the generals came to and saluted him because he was president, but he said that I am not unmindful. कह रहा है कि मैंने भूला नहीं है कि यही लोग कुछ साल पहले जब देश गुलाम था, they did not salute him. ये जनरल्स थे, पुलिस थे, इनको सैल्यूट नहीं करते थे, इनको जेल भेजते थे, इनको पीटते थे। किनको? नेल्सन मंडेला को। और आज चूंकि ये प्रेसिडेंट है, सब लोग सैल्यूट कर रहा है, सब लोग सलाम कर रहा है, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट। लेकिन पहले ऐसा बात नहीं था। पहले इनको टॉर्चर किया जाता था, जेल भेजा जाता था, इनको राइट नहीं दिया जाता था। फिर बोल लिखे आगे कि जो जेट इम्फाला प्लेन ऊपर से फ्लाई किया और जो साउथ अफ्रीकन का जो फ्लैग है, उस फ्लैग के जो ट्रेल ऑफ स्मोक को छोड़ते हुए गया। लग रहा था कि आकाश में साउथ अफ्रीका का फ्लैग होस्ट हो रहा है, लहरा रहा है। अब आया, नाउ इट केम द टाइम टू सिंग द नेशनल एंथम, और वहां दो नेशनल एंथम को बजाया गया, दो नेशनल एंथम को गाया गया, एक व्हाइट के द्वारा और दूसरा ब्लैक के द्वारा। टू नेशनल एंथम थे, और पहला नेशनल एंथम था दैट वाज निकोसी सिकेलेल। इट वाज sang by white people, and black people they sang Die Stem. He said that he confessed that today everybody, many of the African had not learned it, but a time would come when everybody would learn that national song very perfectly and clearly. In next paragraph he write that South Africa, that was independent country, was colonized by the white supremacy just after एंग्लो-बोअर वार हुआ था, एंड बिफोर हिज ओन बर्थ। साउथ नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले और एंग्लो-बोअर वार के बाद यह कंट्री क्या हुआ? गुलाम हुआ। किसका? ब्रिटिशर्स का। और तब वहां रेशियल दे इरेक्टेड सिस्टम वेयर पीपल वेयर टॉर्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कलर के आधार पर पीपल को टॉर्चर किया जाता था, कलर के आधार पर पीपल को राइट नहीं दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी को चलाया गया, पीपल को टॉर्चर किया गया, एंड लेटर ही सेड दैट आफ्टर great sacrifice and long struggle and fighting, ultimately the country became free from the white supremacy. ब्रिटिश के गुलामी से आजाद हुआ। जैसे इंडिया 1947 में फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, वह भी 1944 में अफ्रीका भी फ्री हुआ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ व्हाइट सुपरमेसी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बोल रहे हैं कि जो आजाद हुआ, इट वाज अ ग्रेट टास्क आफ्टर लॉन्ग सेक्रीफाइस। बोलते हैं कि वे ही वाज द सम ऑफ द मेनी फ्रीडम फाइटर हु हैड गॉन बिफोर हिम। बहुत से फ्रीडम फाइटर जो उनके पास मर गए थे, चले गए थे, उनके एक सम है, उनके एक आशीर्वाद है। एंड he said that I am pained at the same time. मैं बहुत दुखी हूँ because those people who made sacrifice for the freedom of the country were not live to see what their labor, their work sacrifice has wrought. उनका जो वर्क है, क्या राउट किया है, क्या लाया है, क्या ब्राउट ब्रिंग किया है, अब देखने के लिए नहीं है। लेकिन वे लोग आफ्टर ए लॉन्ग सेक्रीफाइस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। बोले कि हम अनमाइंडफुल नहीं हैं, हम भूल नहीं रहे उनके सेक्रीफाइस। और जो इम्पोर्टेंट लीडर का नाम रखे जो सेक्रीफाइस किए थे, वे थे ओलिवर टैम्बो, यस ओलिवर टैम्बो, उसके बाद वाल्टर सिसलू एंड टेक लुथलू, यूसुफ दत्तू, ब्राम फिशर, Robert Soboko were some important leader, and beside them there were many. There were a long row of the leaders who made sacrifices. He told that these people had extraordinary courage रखे थे, did not, बोले कि
वो लिखते हैं कि साउथ अफ्रीका है, सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका, ग्रेट जेम्स, डायमंड्स भरे हुए हैं, जेम्स भरे हुए हैं, प्रीशियस स्टोन्स भरे हुए हैं, लेकिन ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, दे आर बेटर देन ट्रू डायमंड एंड ट्रू जेम्स। वे जो ट्रू जेम और डायमंड है उससे भी बड़े हैं, बेटर है। कौन? ये फ्रीडम फाइटर देश के लड़े, जो दे डिड नॉट ब्रेक आफ्टर अनइमेजिनेबल टॉर्चर। टॉर्चर किया गया उनको जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी लोग ब्रेक नहीं किए, फाइट करते रहे, अनब्रोकन दे फाउट। बोलते हैं कि करेज उनके लिए, करेज का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर। उनके पास ऐसा था कि वे डर जो है सो उनका था कि करेज का मतलब ये नहीं था कि एब्सेंट ऑफ फियर हो, फियर नहीं, इट वाज द विक्टोरी ऑफ फियर, फियर पर जीत, डर पर जीत। ऐसा बात नहीं था कि डर नहीं था, डर था, लेकिन डर पर ट्रियम्फ ओवर फियर, डर पर जीत। बोले कि जब वे जेल में थे वहां भी महसूस किए कि वहां जो उनको टॉर्चर कर रहा था उसके पास भी दया था, उसके पास भी लव था, लेकिन उसका ड्यूटी था उनको टॉर्चर करना। बोले कि लव और हेट कर रहे हैं कि लव कम्स नेचुरली, लव इज नेचुरल, लव नेचुरल होता है, एवरीबॉडी है। हेट इज, वी लर्न हेट, हम लोग हेट करना सीखते हैं, लेकिन लर्न लव नेचुरल है। पहले किसी को देखते दया आता है, वो क्यों उसको चोट लगा, और हेट करना सिखाया था कि उसको हेट करो, उसको हेट करो, उस देश का है, उस समाज का, इसलिए हेट करना सीखते हैं, लेकिन लव नेचुरल है। तो अगर हेट सीख सकते हैं तो व्हाई कांट वी लर्न लव? लव करना क्यों नहीं सीख सकते हैं? आगे लिखते हैं किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री, पीपुल हैड, एवरी पर्सन, हर आदमी का दो ऑब्जेक्टिव होता है, दो उद्देश्य होता है, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, रिलेटिव के लिए, और दूसरा होता है देश के लिए, सोसाइटी के लिए। और दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करना पड़ता है। एज ए फादर, एज ए ब्रदर के रूप में परिवार को देखना होता है, और देश के नागरिक के रूप में देश को, समाज को भी देखना होता है। और किसी भी कंट्री में दोनों ड्यूटी पूरा कर सकते हैं, परिवार को भी देख सकते हैं और देश को। लेकिन बोले कि साउथ अफ्रीका में ऐसा बात नहीं है। आप देश के लिए लड़ेंगे तो परिवार छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस आपको पकड़ेगा। इफ यू आर फाइटिंग फॉर द नेशन यू विल बी कॉल्ड अ ट्रेटर, आपको ट्रेटर कहा जाएगा, आपको भागना पड़ेगा देश छोड़कर। यहाँ पर और देश में आप दोनों ड्यूटी पूरा कर सकते हैं, देश का भी, समाज का भी, परिवार का भी। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है, देश के लड़ेंगे तो परिवार से भागना करेगा, क्योंकि पुलिस आपको पकड़े, अरेस्ट करेगा। क्यों देश के लिए बात कर रहे हैं, क्यों फ्रीडम के लिए बात कर रहे हैं? कंट्री फ्रीडम नहीं है। बोले कि जब बच्चा था तो मुझे पता था कि मैं फ्री हूँ, लग रहा था बचपन में कि मैं फ्री हूँ, क्योंकि मैं माँ के पास जो रिवर था गांव में, वहाँ में ही कुड स्विम, तैर सकता था। बुलिस जो थे उसके ब्रोड पर, मतलब खेत में जो चलते थे, भैंस वगैरह चलते थे, उन पर वे सवारी करते थे, चिड़िया को पकड़कर उसको बेच करके खाते थे, और लगता था कि उनका फ्रीडम है सब कुछ। लेकिन आगे जब बड़े हुए तो लगा कि उनका फ्रीडम तो ऑलरेडी कर्टेल है। तब महसूस हुआ कि नहीं भाई, हम फाइट करेंगे देश के लिए। उनका जो फ्रीडम है वह कर्टेल है, पूर्ण नहीं है। चाहते थे कि मैं देर रात तक घर पर आऊं, जब विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, पुलिस उसको रोका। आगे जाकर देखे कि हमारा तो फ्रीडम ऑलरेडी पहले से भी कर्टेल कर दिया गया है, हम फ्री कहाँ हैं, हमारे पास राइट्स कहाँ हैं। और बोले कि जितने लोग, दोज हु आर लुकिंग लाइक हिम, जो उनके तरफ ब्लैक थे, उनको भी राइट नहीं मिला था, ब्लैक लोगों के राइट को छीन लिया गया था। और तब द थर्स्ट फॉर द राइट ऑफ ए पीपुल बिकेम हिज ओन थर्स्ट। लोगों के लिए, लोगों की आज़ादी का जो प्यास था, उनके अपने आज़ादी का प्यास हो गया। और ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द पीपुल ऑफ द नेशन। ही स्टार्टेड, ही resolved to make his nation independent and to make his people free so that they can enjoy every right. और आगे फर्दर राइट दैट लिखते हैं कि वे एक फैमिली लविंग पर्सन थे, एक लॉ अबाइडिंग पर्सन थे, लॉ को मानने वाले थे। लेकिन उनको अब पुलिस पकड़ रहा था, खोज रहा था, देश के लिए लड़ने लगे तो पुलिस खोजने लगा, और नन की तरफ, मॉन्क की तरफ भटकना पड़ा था घर छोड़कर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं
कि जो प्रिजनर जो होता है नैरो माइंडेड, कहने का मतलब यह है कि हर आदमी प्रिजनर है। कौन कौन प्रिजनर है? ऑपरेसर जो किसी को परेशान करता है वो भी प्रिजनर है, और जो परेशान होता है ऑपरेस्ट, दोनों प्रिजनर। ऑपरेस्ट किसे कहते हैं? ऑपरेस्ट उसको कहते हैं जो गुलाम है, जिसको सताया गया है। वह तो गुलाम जो है वो तो है ही, प्रिजनर है अपने मास्टर का, उसको परेशान करता है। लेकिन जो ऑपरेसर है जो किसी को परेशान करता है वो भी गुलाम है। किस चीज का? नैरो माइंडेडनेस का, एक नैरो थिंकिंग का। वह खराब सोच का गुलाम है, दूसरे किसी को परेशान करता है। मतलब अच्छे आदमी दूसरे किसी को भी परेशान नहीं करते हैं, तो फ्री माइंड के हैं, दूसरे चाहते हैं कि दूसरा भी फ्री रहे। दूसरे किसी को गुलाम बनाने वाले खुद गुलाम है। किसी का? इनह्यूमैनिटी का गुलाम है, अमानवीयता के गुलाम है, जो दूसरे किसी गुलाम है। और जो गुलाम है वो तो गुलाम है। दोनों बोथ नीड फ्रीडम, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोथ अलाइक नीड फ्रीडम। दोनों को फ्रीडम की जरूरत है। मतलब जो दूसरे किसी को सताते हैं उनको भी अच्छा सोच की जरूरत है, उनको भी ऑनेस्टी की जरूरत है। उनको एक ऐसा फ्रीडम चाहिए जिससे हर आदमी को वे लोग लव करना शुरू करें। हेट के जो वे लोग हैं गुलाम हैं, तो हेट उनके पास नहीं रहे। हर आदमी को फ्रीडम मिले, हर आदमी आज़ाद हो, ऐसा विचारधारा हो। कोई परेशान करता है वो भी गुलाम है, खराब सोच का। मतलब खराब सोच से आज़ादी मिले। जो किसी को परेशान करता है उसको किससे आज़ादी चाहिए? बैड थिंकिंग से आज़ादी चाहिए। तो बोथ नीड्स फ्रीडम। दोज हु आर ऑपरेस्ड, मतलब जो सताया जा रहा है उसको फ्रीडम चाहिए, और जो सता रहा है उसको भी बैड थिंकिंग का, नैरो माइंडनेस से आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। यही रहा चैप्टर का। तो लोग शुरू किए, नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि भाई कैसे वे लोग क्या फील किए, देश के कैसे डिग्निटी लोग आए। वे जब प्लेस किए, शपथ लिए, तो क्या क्या शपथ लिए कि अब इस देश में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। और व्हाइट लोग परेशान किए हो गया, लेकिन ब्लैक विल नॉट बी अलाउड टू ट्रबल टॉर्चर द व्हाइट। तो बहुत बढ़िया से इसको, दिस हैज बीन रिटन इन वेरी नोबल वे, एंड he has also described his journey, his feeling, and it has also a great message to the world, how a person who is tortured can also be free. And when when one becomes free, he has also then he realized that how we should respect other people, because how one feel when he is tortured. कोई किसी को टॉर्चर करता है तो कैसे महसूस करता है, उसके बाद वह दूसरे किसी को अब टॉर्चर करना चाहता है, क्योंकि वह टॉर्चर्ड होकर महसूस कर चुका है कितना कष्ट होता है जब किसी को कोई टॉर्चर करता है। हर आदमी के पास ऐसा सोच होना चाहिए कि वह पूरा वर्ल्ड जो है सो आगे बढ़े, वर्ल्ड के लिए दूसरे किसी को कभी भलाई हो, ऐसा सोच रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग को हम लोग डेवलप करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।